Hello everyone, I am Assistant Professor Jayendra Patel from Mechanical Engineering Department, Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. In this particular lecture, we will see the power and the functions of the President of India as given in the Indian Constitution. So let's get started. Now, there are numbers of functions as well as numbers of powers of presidents are available. That's why we have divided the powers and the function in the 7 different powers. Very first power is the executive powers, यानी कि execution के power. Second is the legislature power, यानी कि law making powers. Third is the financial power. Fourth is the judicial powers. Fifth are the diplomatic powers, sixth are the military powers, and seventh are the emergency power. You can see that the president is involved in each and every operations. And other than that, there are some veto powers also available. So veto powers भी होते हैं, उसके अलावा pardoning powers होते हैं. So basically veto powers are available in numbers of cases over here. Pardoning powers are available in the judicial areas. So basically we will learn all these things in this particular 7 parameters. Other than that, we will understand veto powers properly and the pardoning powers also. So let us start with the executive powers. So in the executive powers, very first thing, all the executive actions of government of India are formally taken on his name. यानी कि जो भी executive actions होते हैं, executions होते हैं, वो सभी president के नाम पर ही होते हैं. यानी कि president ही officially ये सब करवाते हैं. But remember that the president is not the whole and soul of the executive power. As we talked about it, it is just a titular position. Okay, ये जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो क्या होती है, एक नॉमिनल पोजीशन होती है, टाइटुलर पोजीशन होते हैं. जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, पीएम एज वेल एज द मिनिस्ट्री, ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव्स. एंड रिमेंबर दैट ये जो पीएम और मिनिस्ट्री होती हैं उनकी एडवाइजेस को लेकर हमारे प्रेसिडेंट वर्क करते हैं. सो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस पीएम पास करते हैं वो जाते हैं टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको साइन करते हैं और नाउ उसके बाद वो सभी एक्शंस लिए जाते हैं. क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, इट इज फॉर्मली टेकन ऑन हिज नेम. माइंडसेट क्लियर? सो दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, ही कैन मेक rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रेसिडेंट से ऑथेंटिकेशन लेने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं और किन पर्टिकुलर मैनर में उनको पास करवाना है, उसके जो रूल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट बना सकता है. ओके, यानी कि पीएम जो आते हैं यहाँ पे वो किस तरीके से प्रेसिडेंट्स के पास जाके ये सभी चीजें या फिर जो ऑर्डर्स हैं वो ऑथेंटिकेट करवाएंगे, उसकी जो प्रोसेस है, उनके जो रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं. क्लियर? थर्डली, ही कैन मेक द रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट transactions of the business of union government and for allocation of the said business among the ministers. Okay, so उनके पास रूल बनाने के पावर्स हैं. बेसिकली यहाँ पे भी रूल बनाने के पावर्स है, यहाँ पे भी रूल बनाने के पावर्स अवेलेबल हैं. क्लियर? So these are the executive powers. Now let us talk about the executive powers in terms of appointments. Now he can appoint the prime minister and the other ministers of India and they all holds the office during his pleasure. Clear? So basically prime minister और जो ministers हैं उनको appoint करने की authority हमारे president के पास होती है. Basically whenever the election of the Lok Sabha happens, in that case जो winning party होती है, majority party होती है, उनका जो लीडर होता है उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बनो. ओके, सो वो बेसिकली इनवाइट करते हैं और ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. एंड आफ्टर द पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ही सजेस्ट द नेम्स ऑफ अदर मिनिस्टर्स कि भाई ये सभी मिनिस्टर्स बन सकते हैं इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में. सो उसके बेसिस पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको इन्वाइट करते हैं कि भाई आप इन मिनिस्ट्रीज को हैंडल करो. So this is the way the president selects the prime minister and the other ministers.
अदर देन दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके, जिनको हम बोलते हैं द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से लॉयर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो ही बेसिकली अपॉइंटेड बाय द president, as well as the remuneration of that particular person is determined by the president, and he holds the office during the pleasure of the president. Okay, then after the comptroller and the auditor general of the India, जिनको हम बोलते हैं CAG, जो कॉमर्शियल अकाउंट्स को देखता है, बिजनेस अकाउंट्स को देखते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स. So basically he audits all the account and check the balances. Okay, so he is also selected by the president of India. Then after the chief election commissioner and others, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो सभी लोगों को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. उनके अलावा चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एज वेल एज द अदर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल कमीशंस एंड सो ऑन. यानी कि एक तरीके से बोला जाए कि जो सभी इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि ये सभी इंडिपेंडेंट बॉडी है. सो उन बॉडीज के जो मेन पर्सन होते हैं, हेड होते हैं, यानी कि चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट करने का या फिर उनको नॉमिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है. सो दीज आर ऑल द अपॉइंटमेंट पावर्स द प्रेसिडेंट इज हैविंग. अदर देन दैट, he can ask for any information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation from the prime minister. So this is one of the authority. Then after, he can require the prime minister to submit for the consideration of the council ministers in any matter on which a decision has been taken by a minister but which are not been considered by the council. So he or say president can ask to the prime minister to submit for the consideration of this particular case. Clear? उसके अलावा he can appoint the commissioners to investigate into the conditions of SCs and STs and the other backward classes. So basically there is a senior, okay, by every 10 years में ये चीज़ होनी चाहिए. So उसके लिए एक कमीशन बनता है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि भाई अब 10 years के बाद ST और SCs की कंडीशन क्या है, उसके अलावा OBCs की कंडीशन क्या है, और इस 10 year के लिमिटेशंस को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं. ओके, सो उनके लिए जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं. नेक्स्ट, ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल. नाउ इंटरस्टेट काउंसिल का क्या होता है? इंटरस्टेट काउंसिल बेसिकली हैंडल्स द कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज वेल एज द इंटरस्टेट, यानी कि स्टेट एंड द स्टेट्स. यानी कि जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे स्टेट में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं है, इन दैट केस ही कैन अपॉइंट अ काउंसिल. और कभी भी सेंटर स्टेट में भी ये सेम चीज फॉल होती है, तो इन दैट केस ही कैन ऑल्सो क्रिएट और से अपॉइंट द इंटरस्टेट काउंसिल्स. देन आफ्टर, he can directly administer the union territories through the administrators appointed by him. ओके, जो यूटीज होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि भाई दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाकी के कोई भी यूटीज में नहीं होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में. सो वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. सो वी कैन से दैट President directly administers those UTs. Other than that, he can declare any area as the scheduled area and has the power with respect to administration of those scheduled areas as well as the tribal areas. We are having total 2 schedules area as of now. Schedule number 5 में जो areas available हैं, okay, और schedule number 6 में जो areas available हैं. So both the areas are basically administered or say handled by the president. So उनकी direct responsibility president के पास होती है via the governors.
So these are what the executive powers of the presidents. Now let us go towards the legislative powers. So talking about the legislative powers means the legislature, यानी कि law making authorities. Now over here a president can summon or prorogue the parliament, यानी कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उनको बुला भी सकता है और मुलतवी भी कर सकता है या फिर स्थगित भी कर सकता है. ओके, एंड अदर देन दैट president has the authority to dissolve the Lok Sabha, and if that Lok Sabha gets dissolved, that means the fresh elections will be declared. Okay. Also, whenever requires, he can also summon the joint sittings of both the houses of the parliament. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, ओके, तो उनकी एक कंबाइंड हाउस मीटिंग होनी जरूरी हो जाती है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी कि वो जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज करवा सके बिटवीन द बोथ द हाउस. अदर देन दैट अ प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके एंड हो जाने के बाद जब भी नई लोकसभा जनरेट होती है, इन दैट पर्टिकुलर केस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है. ऑल्सो ही कैन एड्रेस द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. हमारे यहाँ नॉर्मली 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. सो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, वेरी फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, सो उस फर्स्ट सेशन को भी ये एड्रेस कर सकते हैं. Now, over here, a president can send the message to the House of Parliament, whether with respect to the bill pending in the Parliament or otherwise. Okay, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कोई बिल पेंडिंग पड़ा है या फिर कोई मनी बिल पेंडिंग पड़ा है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट को रिमाइंड करवा सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बिल पेंडिंग पड़ा है, आप उनको रिज्यूम करवाइए. सो ही कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ अदर देन दैट ही कैन अपॉइंट any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of both Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha is vacant. Okay, and in the same way, he can also appoint the members of Rajya Sabha to preside over the proceeding when the office of both Chairman and the Deputy Chairman of Rajya Sabha falls vacant. And one of the most common and the most popular thing कि भाई he can nominate total 12 members of the Rajya Sabha. अब राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है, यहाँ पे नॉमिनेशन है, नॉट द इलेक्शन. ओके, सो डायरेक्टली प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं. अब इन 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट को किन बेसिस पे करना है, तो उनके लिए टोटल 4 बेसिस हैं. द पीपल that are having the special knowledge or practical experience in very first literature or science or art or social services. Okay, so these are the 4 areas जहां पे किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उनमें से कोई भी 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट यहां पे नॉमिनेट कर सकते हैं. अदर देन दैट ही कैन नॉमिनेट 2 members of the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. Now let us talk about the bills of the parliaments. Now when we talk about the parliament, a prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bills in the parliament. For example, अगर हम bills की बात करें कि जो इन्वॉल्व करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, वो सभी बिल्स पे प्रायर रिकमेंडेशन या फिर परमिशन की जरूरत पड़ेगी. उसके अलावा बिल फॉर द अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, उनके लिए भी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी. क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ बिल्स रिक्वायर द स्पेशल परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द पार्लियामेंट्स. ओके, नाउ वंस अगेन when the bills are passed from the parliament and they are sent to the president, in that case, if they are passed by the parliament, there are total 3 options available to the president. He may give his assent to that particular bill. The second thing, he may withhold his assent to the bill. So basically, president can reject the bill. And third, he can return the bill.
if it is not the money bill. Okay, so there is a limitation over here. Whenever there is a term to return the bill, remember that if there is a money bill, he cannot return the bill. Now बिल अगर रिटर्न होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट को उससे फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा और उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेगा और फिर से पास करना पड़ेगा. मॉडिफिकेशन इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट, बट दे हैव टू पास द बिल वंस अगेन. बट अगर वो बिल फिर से पार्लियामेंट से पास होता है विथ और विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि विथ और विदाउट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज assent to that particular bill. So this is one limitation. So once again, what will happen, अगर bill president के पास आता है तो in that case president can give directly the assent to that particular bill, or he can withhold that particular bill, or he can return the bill. But returning has a limitation. It should not be the money bill. Okay, money bill नहीं होना चाहिए. Clear? And after the returning the bill, what will happen? The parliament will reconsider the bill. He may modify the bill, he may not modify the bill. Once again, what will happen? अगर वो फिर से पास होता है तो it will go to the president once again and he has to give his assent to that bill. Clear? Now, let us talk about the bills passed in the legislature, state legislatures. Now, state legislature means state level में जो हमारे पास legislative assemblies होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, उनकी बात कर रहा हूं. ओके, सो वहां पे भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन होती है. नाउ ओवर हियर, व्हेनेवर द बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इट हैज टू गो टुवर्ड्स द गवर्नर. ओके, गवर्नर के पास सभी अथॉरिटीज होती है एंड गवर्नर हैज वन अथॉरिटी कि बाय ही कैन कीप दैट पर्टिकुलर बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ वंस अगेन, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, इफ इट गोज टू द president, what will happen, he can give his assent to the bill, or as I told you, he can withhold his assent. Okay, and thirdly, he can give the direction to the governor, because over here the president is not directly involved. governor ने president को बोला है कि भाई ये particular bill को please study कीजिए. Okay, so in that case the president will give the direction to the governor that just return this particular bill for the reconsideration. Once again, यहाँ पे क्या होगा, अगर वो मनी बिल होगा तो यहाँ पे रिटर्निंग का ऑप्शन नहीं होगा. क्लियर? या तो उसे रिजेक्ट करो या फिर उसे असेंट कर दो, दैट्स इट. क्लियर? सो दिस इज नॉट द कंसिडरेशन इन द मनी बिल. ओके, सो रिटर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे गवर्नर के पास होती है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि भाई ये बिल को कंसिडरेशन के लिए फिर से स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दीजिए. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ ओवर हियर देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग. हमने यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या दिखा था कि अगर ये बिल फिर से पास होता है तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव assent to that bill, but there is no such kind of thing over here. If the bill is written for the reconsideration and once again it goes to the governor and governor once again goes towards the president ke bhai just try to consider that particular bill, then president can once again reject that bill or it can go for the रिटर्निंग पर्पज. ओके, सो ओवर हियर इट इज नॉट लाइक कि भाई सेकंड टाइम बिल गया तो उसे फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता या फिर उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी. इट इज नॉट लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री बिल्स एंड इन टर्म्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स. कंटिन्यूइंग फर्दर, नाउ द प्रेसिडेंट कैन promulgate the ordinance when the parliament is not in session. So हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि पार्लियामेंट के नॉर्मली 2 सेशंस होते हैं. अब अगर कोई इमरजेंसी आन पड़े, इन दैट केस अगर पार्लियामेंट्री सेशन ना अवेलेबल हो और कोई इमरजेंसी लॉ इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़े, इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज ऑथोरिटी टू पास द ऑर्डिनेंस. सो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रसिद्ध कर सकता है. एंड व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लॉ इटसेल्फ. ओके, बट इट हैज सम लिमिटेशन. व्हाट इज द लिमिटेशन? नाउ व्हाट हैपेंस वंस द पार्लियामेंट गेट्स रीअसेंबल, यानी कि जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद विद इन द 6 weeks
that particular ordinance must be approved by the parliament. Okay, then and then it becomes a permanent act. But other than that, the president has also power to withdraw that ordinance at any time. अगर president को लगता है कि ये ordinance अब निकाल देना चाहिए तो वो directly उसे निकाल भी सकता है. Okay, so this is the presidential power. अगर उसने ordinance ही पास किया है तो उस ordinance को president निकाल सकता है easily. Clear? Further, he lays the reports of the CAG, the Comptroller and Auditor General of India, UPSC, Finance Commission and other commission before the Parliament. So ये सभी रिपोर्ट्स होते हैं, जो CAG की रिपोर्ट्स होती हैं, UPSC की रिपोर्ट्स होती है, फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं, और जो भी अदर रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है. सो वो सभी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में. अदर देन दैट ही कैन मेक द रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड द गुड गवर्नेंस ऑफ सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान एंड निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, दादरा एंड नगर हवेली हो गई, एंड दमन एंड दीव हो गए. सो ये सभी जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें जो गुड गवर्नेंस है, पीस है एंड प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए टाइम बाय टाइम प्रेसिडेंट रेगुलेशंस निकालते रहते हैं और बनाते रहते हैं. नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ द पुडुचेरी, बिकॉज पुडुचेरी में क्या है, पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है जो रेगुलेशंस बनाती रहते हैं. बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स इफ द लेजिस्लेचर गेट्स सस्पेंडेड और से डिसॉल्व्ड, और प्रेसिडेंट को लगता है कि नाउ देयर इज अ नीड टू मेक अ रेगुलेशन. इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. यानी कि पुडुचेरी में भी वो रेगुलेशंस बना सकते हैं. बट कंडीशंस क्या है कि वहां की जो असेंबली है वो सस्पेंड हो चुकी हो या फिर उसे डिसॉल्व किया जा चुका हो, यानी कि फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हो. सो दिस वर ऑल द legislative powers of the president. Just think about the legislative powers, how powerful the president is. अगर हम यूके की प्रेसिडेंट की बात करें, वहां पे जो किंगडम है, यूके में जो तो किंगडम चलती है, बट वहां की जो क्वीन होती है या फिर किंग होता है, उसके बाद सिर्फ टाइटुलर पावर होते हैं. वहां पे कोई भी पावर ही नहीं होती. क्वीन या फिर किंग जो होते हैं वहां पे उसको सिर्फ साइन ही करना है और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. बट द इंडियन प्रेसिडेंट हैज मोर पावर देन दैट. बट हम यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, यूएस के प्रेसिडेंट के पास डबल पावर होती है. वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट की भी पावर है और हमारे जो पीएम है उनकी भी पावर होती है. सो बोथ पावर्स आर हैंडल्ड बेसिकली बाय द प्रेसिडेंट. ओके, ये दिस इज द जनरल ओवरव्यू. ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों की दोनों कंप्लीट पावर है. दिस इज द जनरल ओवरव्यू. दैट्स व्हाई वहां का जो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा पॉपुलर है और हमारा जो इंडिया है वहां पे पीएम ज्यादा पॉपुलर है. नाउ लेट अस गो थ्रू द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. Now, very first thing, the money bills. Now, these money bills can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. President सबसे पहले recommend करेगा भाई money bill pass करो. Now, annual finance statement को lay down करने के लिए भी president ही recommend करेगा. Okay. Now, annual finance statements में जो union budget होता है, तो union budget के लिए भी president ही basically lay down करेगा कि भाई ये हमारा एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट हो सकता है. अदर देन दैट, अगर कोई भी ग्रांट की डिमांड करनी है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकती. ओके, सो दे हैव टू गो थ्रू द प्रेसिडेंट एंड देन इफ द प्रेसिडेंट रिकमेंड्स देन एंड देन वन कैन डिमांड द ग्रांट इन द पार्लियामेंट. क्लियर? देन आफ्टर he can make the advances out of the contingency fund of the India. Okay, so contingency fund ऑफ इंडिया में से अगर कोई एडवांस की जरूरत पड़ती है, अगर कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, कोई सुनामी आ गई या फिर कोई बड़ा सा कुछ हो गया जहां पे अचानक हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई, इन दैट पर्टिकुलर केस हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से एडवांस निकालते हैं. सो वो बेसिकली चीज प्रेसिडेंट के थ्रू ही हो सकती है. And lastly, after every 5 years, the Financial Commission recommends the distribution of the revenues between the center and the states.
वो भी प्रेसिडेंट के अंदर में ही आती है. So this is what the financial power of the presidents are. And lastly, let us talk about the judicial powers. Normally हम बोलते हैं कि भाई जो हमारी judiciary system है वो basically totally independent है. बट इंडिपेंडेंट कौन से सेंस में है कि भाई जो लेजिस्लेचर होता है उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव होती है उससे अलग हमारी जुडिशियल सिस्टम होती है. बट ओवर हियर द प्रेसिडेंट हैज गिवन सम एक्स्ट्रा पावर्स कि जिससे प्रेसिडेंट जो जुडिशियल पावर्स होते हैं उसको ओवरराइड कर सकता है. देयर इज अ वेरी लिमिटेड पावर टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट. द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर, he can appoint the chief justice of the India, जिसको हम CJI in short बोलते हैं. And also he can appoint the judges of Supreme Court and the High Courts. Other than that, he can seek the advices from the Supreme Court on any of the question of the law or the fact. But it is not necessary कि भाई Supreme Court जो भी advisory देगा वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा. ओके, सो बेसिकली द एडवाइसेस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग टुवर्ड द प्रेसिडेंट. अदर देन दैट, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कॉम्यूट द sentences of any person involved of any offense. So over here let us understand very first thing, pardon means what? Kshamadhan karna. Secondly, reprieve means dand viram. The president can give gap between the punishment. उसके अलावा respite means राहत देना. And lastly, the remission means सजा में छूट-छाट, punishment में छूट-छाट देना. So basically president has all these powers. President can grant all these powers in three different cases. Very first thing, in the case where the punishment or sentences is by the court martial. The second thing, the cases where the punishment or sentence is for an offense against the union law. And third, in the cases where the sentence is a sentence of death. So basically president can reduce the punishment given by all three cases by using all these four things. Clear? So these are the judicial powers of the president. Now let us talk about the diplomatic powers of the president. We will go quickly. The very first thing, the international treaties and the agreements are negotiated and concluded on behalf of the president. I am talking on behalf of the president. यहाँ पे होता क्या है basically? Actually all these international treaties and agreements जो भी negotiation होते हैं वो सभी सबसे पहले पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे अप्रूवल होती है एंड आफ्टर दैट दे आर concluded, okay, and they are concluded on the name of the president, okay, but before that the approval of the parliament is necessary, okay. उसके बाद president को उसे assent करना है या फिर hold करना है वो president decide करेगा. Clear? Secondly, he represents the India in the international forums and affairs and send and receive the diplomats like the ambassadors, high commissioner and so on. Other than that, president has the military powers also. Very firstly, he is the supreme commander of the defense forces of the India, okay. So officially titular commander की बात कर रहा हूं, he is the supreme titular commander of the defense forces of the India. So as this capacity by ये supreme commander हो गया, so basically उस supreme commander की हैसियत से the president has the power to appointment the chief of the army, the navy and the air force. So उन सभी की appointments president करता है and he can declare war or conclude peace, but it is also subjected to the approval of the parliament, okay. Parliament ने approval दिया, उसके बाद president can declare war or he can conclude the peace. Clear? So these are all the military power of the president. Now other than that there are some emergency power also available.
Now, in normal situation, president has some of the powers, but above that, the constitution confers some of the extraordinary powers towards the president to deal with some of the emergencies. ओके एंड वो सभी पावर्स लिखे हुए हैं 3 डिफरेंट इमरजेंसी के आर्टिकल्स में. वेरी फर्स्ट इमरजेंसी इज द नेशनल इमरजेंसी विच इज अवेलेबल इन द आर्टिकल नंबर 352. सेकंड इज द प्रेसिडेंशियल रूल जिसको बोलते हैं हम स्टेट इमरजेंसी. दे आर मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 365. एंड थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज एक्चुअली अवेलेबल इन द आर्टिकल नंबर 360. एज वी आर गोइंग टू लर्न all this emergency in depth in the last chapter, so we are not going in depth over here. Okay, just remember that कि भाई नॉर्मल सिचुएशन के अलावा भी प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हैंडल करने के पावर्स मिले हैं जो कि मेंशन है ऑल दिस 3 आर्टिकल्स में. क्लियर? सो यहां पे प्रेसिडेंट को फुल अथॉरिटी मिल सकती है. सो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर्स. अब हम इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को पकड़ देंगे और उनको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टडी करेंगे. अदर देन देयर आर सम वीटो पावर्स आल्सो अवेलेबल टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट. ओके, जो इन सभी चीजों के साथ डील करते हैं, तो उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर विल बी द इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ द सेम टॉपिक. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. कीप स्टडिंग. हैव अ गुड डे.